Friends, I am well. I hope you are also well in your homes. Stay safe and use your hand wash and all. Okay. Now today we are going to start our lesson, The Balloon Man. This is your first lesson of class 5th, and this will be first chapter. And we are going to explain in this how the balloon man is working. Means गुब्बारे बेचने वाले लोग कैसे वर्क करते हैं. Actually, the small kids loves the balloon. Why? They are colorful, interesting, and they play very well with the balloons. And when they are playing very well with the balloons they are colorful in the many shapes like apple shape and the round one and the heart shaped one. Many different types of balloons are there. But why these balloons are famous? These balloons are famous. Why these kids like this most? In the our past ever days, means we can say that बहुत समय पहले की बात है कि जब ये बच्चे मतलब बलून्स को बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करते थे, मीन्स उनको उतना पसंद नहीं आता था, तब इसका चलन हमारे इंडिया में कैसा था. इस एक्चुअली ऑल अबाउट द चाचा नेहरू, जिनको हम लोग बहुत अच्छे नेता के रूप में जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने क्या किया था, बच्चे उनको क्या करते थे, रोज देते थे, और उनके अदर चीज इन द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स वो क्या देते थे, उनको बलून्स लेके देते थे. तो ये जो बलून्स उस टाइम से फेमस है, और ये बलून्स डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल शेप हो गया, राउंड शेप, हार्ट शेप, एंड मैनी अदर डिफरेंट शेप्स आर देयर. एंड दिस कलरफुल बलून्स आर हेल्पफुल इन द प्लेइंग ऑफ किड्स. जो स्मॉल किड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ये बलून. क्यों? क्योंकि उनके साथ ये खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है. और इसमें मोस्टली द एयर आर फिल्डेड, इट विल बी ब्रोकन, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसको हर कोई बाय कर सकता है. मीन्स नॉर्मल पीपल कैन ऑल्सो बाय. और इस लेसन में सिर्फ इतना ही है, और बलून्स के बारे में that's it. This is your next lesson. Sattu goes on shopping. As you know, we all love the shopping of different things, but here we are talking about the shopping of groceries. Groceries means what? That is our household things. We can be sugar, soap, sponge, and many more things. But these things are the different types of available. How sugar is measured? It measured in a kilo, and we are talking about the bananas. How banana is measured? It measured in dozens. And oil is measured in liter. And the sponge, in sponge is what? It's kilos. Soap is 1 bar. We want 1 bar, that means 4 sets of 1 bar. It means different shoppings, and this grocery shopping is mainly done by the boys, or nowadays the women are also going. Let me tell you in the Hindi. Groceries means the kirana shop. Nowadays, men's are going, kids are going, women's as well as other old people are also going. वहाँ पे जो सामान हम लोग लेते हैं वो बहुत अलग अलग रेटों में मिलता है, और अलग अलग चीजें मिलते हैं. जैसे कि अब हम सोप को नहीं बोल सकते कि हमें सोप 1 किलो दे दीजिए, बोल सकते हैं? नहीं. सोप को हम क्या बोलेंगे, हमें 1 बार दे दीजिए, या 1 सेट दे दीजिए. 1 सेट में कितने होते हैं? मोस्टली 4 और 5 होते हैं. अब शुगर को हम नहीं बोल सकते कि आप लीटर में दे दीजिए. शुगर ऑलवेज विल बी इन द किलोग्राम्स. And same thing, here we will talk about the biscuits, the common and mostly used snacks in our daily life. Biscuits, we will not say please give me 1 liter biscuit. We will say no. We will say give me a packet of biscuit. मतलब मुझे एक पैकेट बिस्किट का दे दो, 1 या 2 जो भी आपको चाहिए. और same time when we will talk about the oil, oil को हम नहीं बोल सकते कि आप मुझे 1 किलो ऑयल दे दीजिए. We will mostly say in what? मुझे 1 लीटर ऑयल दे दीजिए. तो ये सारे थिंग्स जो है ग्रोसरी के, ये हमें तब पता चलते हैं जब when we are going to the shops. When we are going to the shops, we will know the different things. In the when I am kids, जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि बनाना को डजन में कितने बनाना होते हैं. Now I am knowing when I am going to buy it, or when I am developed. That means in 1 dozen there will be 12 bananas commonly. So these things are the common things which will be known by us when we go in the outside of our house. Inside the house, each and everything will be produced. You cannot say that we want this and that. Whatever the things we are going to have, it has some quantities, some measurements
In that measurement only we will get the things. The fish and the duck. This is your next lesson, lesson 3rd, the fish and the duck. It means this chapter is dedicated to one मुहावरा in Hindi. घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? This chapter is directly or indirectly indicated to this chapter. Means a fish never can be a friend of duck and a duck never be a friend of fish because duck is eating to fish. तो अगर duck फिश से दोस्ती करता है तो वो खाएगा क्या? In this chapter, when we are talking about the fish, as we all know that fish is an aquatic animal. वो पानी में रहता है. तो और जो डक है वो भी पानी में रहता है, लेकिन उसको खाने के लिए क्या चाहिए? फिश चाहिए, ईगल्स चाहिए, मीन्स जो छोटे छोटे एल्गीज होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है वो. और अगर वो डक फिश से फ्रेंडशिप कर लेता है तो वो क्या खाएगा वाटर में? इस चैप्टर में उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन्होंने उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत, वो क्या होती है. वन डे व्हाट हैपेंड, द फिश वाज स्विमिंग इन द वाटर एंड द डक वाज टोल्ड, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? द फिश रिप्लाइड, यस आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? मीन्स तुम कैसे हो, तुम बताओ. देन व्हाट द फिश सेड, डोंट से मी फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड. मुझे फ्रेंड मत बोलो, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ. देन डक स्माइल, व्हाई यू सेइंग लाइक दिस? मीन्स तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? एंड द वेरी नाइस रिप्लाई गिवन बाय द फिश, द स्टार्टिंग व्हाट आई टोल्ड यू, मीन्स कि तुम मेरे फ्रेंड इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ? हंट हूँ. दैट मीन्स तुम मुझे खा लोगे. आई एम योर फूड, नॉट योर फ्रेंड. मैं तुम्हारा खाना हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता. वन डे you will eat me, so don't call me a friend. This chapter, so what happened after this some conversation, the boy was fishing in the water. एक बच्चा फिशिंग कर रहा था वाटर में, जो कि एक्चुअली में क्या कर लेता है, वो फिश को पकड़ लेता है. What the fish was snatching, तो वो डक क्या करता है, फिश को बचाने के लिए जाता है, तो अपने चोंच से खींचता है. बट what happened, His mouth was plugged. इसके माउथ जो होते हैं छोटे से रहते हैं, ओपन होते हैं. फिश को खींचते हैं तो क्या होता है, जो यहाँ की ग्रिप्स में रहता है ना, वो फिश अंदर चला जाता है. मीन्स नहीं चाहते हुए वो फिश को वो खा लेता है. इट वॉज एन बाय मिस्टेक बट इट वॉज अ फैक्ट कि अगर हम अपने खाने वाली चीजों से दोस्ती करेंगे तो हम खाएंगे क्या? डक ने गलती से किया, लेकिन एक्चुअली नाउअडेज व्हाट द पीपल आर डूइंग, आजकल लोग क्या करते हैं, खाने की चीज छोड़िए, आपस में ही इतने ज्यादा मतलब कि कन्वर्सेशन रहते हैं कि उनसे जेलसी है. बच्चों के बीच में भी आजकल हो जाता है, इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, हो जाता है. दिस इज द अनदर थिंग, गो थ्रू व्हाट वी आर हैविंग. आप ये मत देखिए कि सामने वाले के पास क्या है, आप ये देखिए व्हाट यू आर हैविंग द स्पेशल थिंग. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल, हम लोग जो बात करते हैं अमीर लोगों की, what he is having lots of food on his table. उनके टेबल में बहुत सारे खाने वैरायटीज के. But what he is having the disease, diabetes. He cannot eat. उसके पास अलग अलग वैरायटीज के मिठाई है, पर उसके अंदर शरीर में क्या है, डायबिटीज. एक ऐसा बीमारी है जो कि वो तो देख तो सकता है मिठाई को, लेकिन खा नहीं सकता. This is the fact. You must go through your what you are having and always thank to God कि उन्होंने आपको क्या दिया. Lesson 4, cats. In this lesson, it is not a lesson, it's a poem. In this poem, we are going to learn about the pet animals. Nowadays, what the people we are having. अभी की जनरेशन में सभी के यहाँ नॉर्मली पेट डॉग्स होते हैं. कोई डॉग का शौकीन होता है, कोई कैट, कोई पैरट और अदर एनिमल्स भी होते हैं. लेकिन एक्चुअली में इन दिस पोएम means we are talking about the cats. How the cat was doing in this poem. Cat sleep anywhere and any table chair. कैट क्या करता है, कहीं पे भी सो जाता है, इवन इन द पियानो, टेबल. और क्या करता है वो, ही लव्स द मिल्क. उसको जो बहुत ज्यादा क्या पसंद होता है, मिल्क पसंद होता है. और व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेड विदाउट परमिशन समबडीज. ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेड. वो जो अपने ओनर का बेड होता है उसमें बिना परमिशन के सो जाता है, बिकॉज it was an animal. He don't having the thinking power, but he is nowadays more faithful as a human.
अब लोगों को ऐसा लगता है कि इंसानों से ज्यादा वफादार एनिमल्स है. We are nowadays seeing these things. And in this poem, the cat here is playing the piano. जो कैट है एक्चुअली में पियानो बजाती है, लेकिन वो बजाती नहीं है, वो एक्चुअली में पियानो के ऊपर सो के लोटपोट करती है, जिससे एक धुन वाइब्रेट होता है. तो इस पोयम को उसी द्वारा बनाया गया. द कैट वॉज स्लीपिंग एनीवेयर, एनी टेबल चेयर, एनी फ्रॉग्स एंड एनी वेयर. Lesson 5 at the platform. In this, we are talking about the station's platform when we are going to receive someone or give up someone, our guest. In this lesson, they are having the 4 friends: Geeta, Tripti, Joshna, Sahil, and Tara. They are going to receive Tripti, and the train was at the time of 10 o'clock. And they came. What they saw, let me explain you in the Hindi. They went to the station, and what they saw there? They saw a people was what do you say, selling the samosas, and that samosas, what the flies were injecting on that. एक आदमी था जो कि समोसा बेच रहा था, और बच्चे बहुत ज्यादा समोसा वगैरह के शौकीन होते हैं, बाहरी फूड के, आई मीन जंक फूड. दे लव द जंक फूड्स. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो बच्चे अपनी फ्रेंड को रिसीव करने के लिए आए होते हैं, और उन लोग क्या देखते हैं, समोसा देखते हैं. तो बोलते हैं तारा कि मुझे बहुत भूख लग रही, लेट मी टेक समोसा फॉर ईटिंग. लेकिन सडनली क्या होता है, उन लोग क्या देखते हैं, उस पर मक्खी बैठ रहा है. यू दे डोंट इवन लाइक टू ईट दैट बाय सीइंग दैट. उनको पसंद नहीं आता, अच्छी इस पे मक्खी बैठी हुई है. आई डोंट नो वेयर फ्रॉम दैट फ्लाइज केम. पता नहीं वो फ्लाइज कहाँ से आए हुए हैं. एंड दैट व्हाट द गीता सेड, नो वी विल नॉट ईट दिस. ये अनहाइजीन फूड हम बिल्कुल नहीं खा रहे. हम लोग क्या खाएंगे, जो हमारी मॉम ने भेजे. What they are having in their lunch box? They are having the idli in their lunch box, and they have one piece each of them. उनकी भूख तो खत्म नहीं हुई, बट sometime उन्होंने रोक लिया अपनी भूख को, क्योंकि उन्होंने शेयर करके खाया. This good habits always comes in our friends from our schools and colleges and outside office jobs. When one is not having the lunch box, we are sharing it with each other, and we are having that lunch. And after some time, स्नेहा came with the train. स्नेहा आ जाती है ट्रेन से. उसके बाद उन्होंने उसका सूटकेस लिया, and they moved to their hometown. उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं. और ये हमारा जो स्कूल लाइफ होता है, उसमें हम लोग सीखते हैं शेयरिंग, केयरिंग, एंड अवॉइड द अनहाइजीन फूड नाउअडेज.